चलें, इसमें आया कि नाउ आई हैव टू डिस्कस विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज योर सेक्शन सी 7 सेक्शन सी। ठीक है, तो स्लाइड शो मेरा ख्याल आपको हो रहा होगा, कुछ ऐसा ही है। अच्छा चलें, ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्लीज कम ऑन। चलिए जी, आज हमारा जो है वो दैट इज टुडे वी आर हैविंग सेक्शन सी, एंड इन सेक्शन सी वी आर हैविंग अ वन इशू, दैट इज द इशू ऑफ दैट हाउ वी कैन मेक एन एस्टिमेट अबाउट द इन्वेंटरी कॉस्ट। ठीक है, sometime what we are required to do is that we are required to prepare the financial statement just for our own personal understanding, fine, or just in order to fulfill some of the requirement, and these financial statements are called as the interim financial statements. ठीक है, for instance, in generally a company is going to prepare the annual report by the end of the year, fine, and then this annual report is also examined by an independent certified public accountant or independent chartered accountant, fine. But during the year, the company is also required to prepare the different reports, but these reports are called as the quarterly report. And the important thing is that these reports are unaudited. Why these reports are unaudited? Because most of the items reported in these reports are based on some kind of estimates, just like in which one is that is you can say that is if we would like to report the inventory as a part of the current asset, so what is the price at which we can report the inventory, fine. So here in this section they have discussed with us some of the, you can say that, methods. They have discussed with us some of the methods, fine. And what are these methods? uh, uh, let's see that what are these methods, fine. Okay, before discussing the concept of this estimation of inventory, first of all, they have discussed with us that is the concept of markup. Fine. Markup is simply the difference between, you can say that your sale price minus cost price. Fine. Let's suppose if I'm saying that that is a sale price of a product is, or a sale price of a unit is, that is of 5 rupees. However, the cost price of the same unit is of 4 rupees. So the difference is called as 1 rupee. So this one is called as a markup. Fine. So when we are computing a profit, when we are computing a profit on individual base, on unit basis, then we are going to use the term of the markup. But let's suppose if I'm saying that we have sold 2,000 units, okay, sale price is 5, so total sale is of 10,000, and then the cost of goods sold is 2,000 unit multiplied by 4 is equal to 8,000, and we are having a difference of sale and cost of goods sold that is of 2,000, to whom we can call it as a gross profit. So gross profit is a total amount. However, you can say that markup is a unit amount. Okay. Markup is simply the difference between the two values, that is your sale price per unit, and you can say that your cost per unit. Fine. Then second thing is we are also required to compute the rate of markup. So we can compute the rate of markup on two bases. The one thing is either the rate of markup can be computed on the basis of cost, or the rate of markup can be computed on the basis of sale price. So when we are going to compute that is, let's suppose, as I already told you, that is the sale price is of 5 rupees per unit and the cost is of 4. So the difference is 1. So this difference is called as a 1. So this difference is called as a markup. So if I'm going to compute a rate on the basis of sale price, so 1 divided by 5 multiplied by 100 is equal to 20%. But if I'm going to compute the rate of markup in relation to cost, so 1 divided by 4 multiplied by 100 is equal to 25%. तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा मार्कअप है वो इन रिलेशन टू सेल प्राइस तो 20% है, हाउएवर आवर मार्कअप इन रिलेशन टू कॉस्ट प्राइसेस दैट इज ऑफ 25%. नेक्स्ट देखिएगा जी जरा इसको. नेक्स्ट में अब उन्होंने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है. इंफॉर्मेशन उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है कुछ डेटा है रेलेवेंट टू द कॉस्ट प्राइस. फाइन.
however the data is given with respect to rate of markup on selling price. ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा उन्होंने एक दिया, कहता है when only the unit cost and desired rate of markup on selling price are known, the selling price can be determined by the two methods. Suppose, for example, that we wish to price an item costing 8 so as to achieve a markup of 20% on selling price. जी, अब वो यहाँ पे कहता है कि हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है, वो कितनी है $8, और हमें दिया हुआ है रेट ऑफ मार्कअप ऑन सेल प्राइस. ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज हमने जिस चीज का ख्याल करना है वो ये है कि रेट ऑफ मार्कअप ऑन कॉस्ट इज नॉट गिवन. ठीक है, if the rate of markup on cost is given and cost is also given, then we have to compute the percentage very easily. Fine. However, now what had happened in this example, they have simply given the cost price. However, they have given the rate of markup on sale price. So most of the time a student is going to commit a mistake either in midterm examination or final term examination. So what they are going to do it, they are simply going to compute the 20% of the cost. So 8 का अगर हम 20% लेंगे तो ये 1.6 आएगा. तो इसमें फौरन से वो 8 में 1.6 को ऐड करता है और वो कहता है 9.6 is the sale price. No, my dear, 9.6 is not the sale price. Why 9.6 is not the sale price? Because you were required to compute the 20% in relation to the sale price. However, the sale price is not given, but the cost is given. So if the cost is given and the rate of markup on sale price is given, then how we have to compute the sale price? Then we have one formula, that selling price is equal to cost divided by 100% minus rate of markup on sale price. Okay, so ये हमारा formula होगा $8 divided by 100% minus 20% will be equal to 0.8. So 8 divided by 0.8 is equal to 10. Okay, so 10 is the sale price. Fine. इसी तरह से फिर वो यहाँ पे नीचे अगर आपको यहाँ पर नीचे आपको कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, वो कहता है कि हाउ यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ मार्कअप ऑन कॉस्ट व्हेन द रेट ऑफ मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस इज अवेलेबल. कहता है कि अगर आपको रेट ऑफ मार्कअप सेलिंग प्राइस पे गिवन है लेकिन आपको रेट ऑफ मार्कअप ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो हाउ यू कैन कंप्यूट इट, द रेट ऑफ मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100% माइनस रेट ऑफ मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस. So 20% divided by 100% minus 20%, so 20 divided by 8 is equal to 25%. ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें दो लेसन दिए हैं. एक लेसन ये दिया है, सबसे पहला लेसन ये था कि हम मार्कअप किसको कहते हैं. तो मार्कअप इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, दैट इज सेल प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट. ओके, फिर सेकंड लेसन ये था कि हाउ वी कैन कंप्यूट द रेट ऑफ मार्कअप. वी कैन कंप्यूट द रेट ऑफ मार्कअप इन रिलेशन टू कॉस्ट एंड वी कैन आल्सो बी एबल टू कंप्यूट द रेट ऑफ मार्कअप इन रिलेशन टू सेल प्राइस. फिर जो तीसरा लेसन ये था कि लेट्स सपोज इफ द सेल प्राइस, लेट्स सपोज that if the cost price is given and rate of markup on sale price is given, then how we have to compute the rate of markup on that, how we have to compute the selling price. Okay, अब जो फोर्थ लेसन उसने हमें दिया है वो बुनियादी तौर पे ये है कि how you have to find the rate of markup on cost if the rate of markup on selling price is given. ठीक है, तो these are the four formulas to whom you have to discuss. ठीक है, to whom you have to study, go through it at your own. If you will finding any kind of difficulty in it, so then I will discuss with you. Okay. चलें, उसके बाद देखते हैं. अब हमें नेक्स्ट उन्होंने कहा आज हमारा जो इशू था, दैट इज हाउ वी कैन मेक एन एस्टिमेट अबाउट द इन्वेंटरी. फाइन. For estimation purpose, what is going to be happen that we are having the two approaches. One is called as a gross profit method approach and second is called as a retail inventory method. So अब वो यहाँ पे आपको दूसरा बताता है कि why the companies are going to make an estimate about the inventory, because they are required to prepare the interim financial statement. So the companies which are preparing the financial statement within a year, these are called as the interim statement. But remember that these interim statements are not examined by an independent certified public accountant. Okay. ये बहुत सारे लोग अभी सो के उठ रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा सिलसिला? जाग रहे हैं सर सारे? नहीं, सो रहे हैं बेटा, बहुत सारे लोग सो रहे हैं. अच्छा जी, चलें. इसमें देखिएगा कि अब हमें थोड़ा सा एक जो है उन्होंने एक हमें मेथड दिया है, तो इस मेथड को गौर से देखते हैं. इन्वेंट्री एस्टिमेशन बाय द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड अप्रोच. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि वी वांट टू डिटरमिन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री बट बेस्ड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट.
we want to determine the level of inventory but based on gross profit method. Okay, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड की बेसिस पे हम इसको डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास बिगनिंग इन्वेंटरी है दैट इज ऑफ 1,30,000, देन वी आर हैविंग परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। ओके, सो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज 6,30,000। ओके, अब उसने कहा जो हमारी सेल्स हुई हैं वो हमारी हैं 7,20,000 और जो हमारा ऑन एवरेज प्रॉफिट होता है वो 25% होता है, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25% है। तो अगर हमने सेल 7,20,000 की है तो उसका 25% हम कैलकुलेट करते हैं तो विच इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 6,30,000 का था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 540 की है, तो इसका मतलब है व्हाट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री? सो द इन्वेंट्री इज ऑफ 90,000. So this is the way in which you can determine the level of inventory, and this is the inventory to whom you must have to report in your balance sheet because you have to prepare your balance sheet. Okay, ये बात समझ लगी है यहाँ पे आप लोगों को? जी सर। चले, बाकी लोगों को भी समझ लग गई है कि ये बुनियादी तौर पे क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, और वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यू कैन से दैट we have to determine the level of CGS on the basis of your inventory. We have to determine the level of CGS on the basis of inventory. ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हुआ क्या? इस क्वेश्चन में ये हुआ कि उसने सेल्स दे दी और हमें रेट ऑफ प्रॉफिट दे दिया। तो हमने सबसे पहले हमने सेल्स ली, ठीक है, जो कि 7,20,000 की हैं, उस पर हमने 25% रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो 180 आया। तो अगर 720 में से 180 मेरा प्रॉफिट है तो डिफरेंस क्या होगा? दैट इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब मैंने कहा कि मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थे वो 6,30,000 के थे और जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई है वो 540 की है। तो इसका मतलब है जो इन्वेंट्री मेरे स्टोर रूम में होनी चाहिए वो 90,000 की है। अब इस मेथड के अंदर हम बुनियादी तौर पे whenever we are required to prepare the interim financial statement, at that moment we are not actually visiting the store room. हम स्टोर रूम के अंदर घुस नहीं जाते, हम फिजिकली आइटम को चेक नहीं करते, हम यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू को डिटरमिन करना चाहते हैं अंदाजे के साथ। तो अंदाजा हमारी इन्वेंट्री का होना चाहिए 90,000 रुपए का। ओके, अब वो नेक्स्ट में आपको कहता है कि हाउ यू कैन मेक एन एस्टिमेट अबाउट द इन्वेंट्री लॉसेस। आप अपने इन्वेंट्री लॉसेस को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। ओके, उसी एग्जांपल को लिया, वो कहता है बिगनिंग इन्वेंट्री 130 है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख है, अवेलेबल फॉर सेल 6,30,000 है। ठीक है, सेल्स ड्यूरिंग पीरियड 7,20,000 है और वही हमारा प्रॉफिट 180 है। तो इसका मतलब हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 5,40,000। तो 630 माइनस 540 90,000। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो फिजिकली इन्वेंट्री अवेलेबल है वो सिर्फ 60,000 रुपए की है, तो इसका मतलब है कि मेरा 30,000 का इन्वेंट्री लॉस हो गया। ठीक है, अब ये जो इन्वेंट्री लॉस है, अगर आप समझते हैं कि दिस परसेंटेज इज टॉलरेबल टू यू तो आप इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट इफ दिस परसेंटेज इज नॉट टॉलरेबल टू यू देयर आर सो मेनी यू कैन से दैट रीजन। फॉर इंस्टेंस देखें, अभी हम कहते हैं कि हमारा 90,000 रुपए अंदाजन इन्वेंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन फिजिकली हमारे पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो 60,000 है। तो इसका मतलब है 30,000 की इन्वेंट्री कहाँ गई? सो दिस इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड इन्वेंट्री लॉस। लेकिन ये जो एस्टिमेटेड इन्वेंट्री लॉस है, इसको आपने गौर से समझना है कि ये बुनियादी तौर पे क्या है। शायद आपने जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो शायद आपने ओवर कर लिया हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपका प्रॉफिट 25% है, ठीक है, तो शायद आपका एक्चुअल प्रॉफिट 20% हुआ होगा। तो जब आपका एक्चुअल प्रॉफिट 20% होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी, तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी तो आपकी इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे ये जो 30,000 की अमाउंट है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एस्टिमेट। रिमेंबर दैट एस्टिमेट कैन बी एन ओवर, एस्टिमेट कैन बी अंडर। ओके जी, उसके बाद अब वो यहाँ पे आपको रीजंस बताता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू मेक एन एस्टिमेट अबाउट द इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मेथड अप्रोच। फाइन, द फर्स्ट रीजन इज दैट वी वांट टू प्रिपेयर द इंटरिम स्टेटमेंट। सेकंड थिंग इज टू चेक द रीजनेबलनेस एंड द फिजिकल इन्वेंट्री फिगर। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेंट्री का फिगर है वो बुनियादी तौर पे क्या है। ठीक है, और जो तीसरी बात है वो कहता है टू एस्टैब्लिश द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री लॉस। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं कि वी वांट टू प्रिपेयर द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंडली, हम डिटरमिन करना चाहते हैं व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री दैट माइट बी अवेलेबल इन द स्टोर रूम।
और जिस वक्त हम इस एस्टिमेटेड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को कंपेयर करें विद योर एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेंट्री और उस प्रोसेस में जो डिफरेंसेस आएंगे उससे हम एस्टिमेटेड इन्वेंट्री लॉस को डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे 3 हमारे इश्यूज हैं यहाँ पे। चलें जी, अब नेक्स्ट में वो आपको क्या कहता है एस्टिमेटिंग इन्वेंट्री बाय द रिटेल इन्वेंट्री मेथड। अब ये नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ रहा है जिसको कहता है एस्टिमेटिंग इन्वेंट्री बाय द रिटेल इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, रिटेल इन्वेंट्री मेथड को जरा गौर से देखिएगा कि ये रिटेल इन्वेंट्री मेथड हमें क्या कहता है। You people might have visited you can say that is Chase Departmental Store, CSD Store, you can say that Prince Departmental Store, Condes, KK Mart। ठीक है, इस किस्म का कभी कभी विजिट किया है क्या आपने? जी सर। हैं जी? जी सर। अभी नींद से बेदार नहीं हो रहे आप लोग हैं ना, ये आवाज निकल रही है। जी सर, मैंने कहा किया हुआ विजिट सर। हाँ, विजिट किया हुआ है। तो वहां पे जो चीज कभी आपने ऑब्जर्व किया कि हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल? यस सर। जो हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स जो अवेलेबल होते हैं उन आइटम्स के ऊपर क्या लिखा होता है? ओनली द सेल प्राइस, रिटेल प्राइस इज मेंशन। यस सर। चलो, अब रिटेल प्राइस है ना, ठीक है। तो अब बुनियादी तौर पे हमें वो ये समझाना चाहता है कि हम अगर रिटेल प्राइस की बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस पे कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, कभी किसी सेलर ने ये लिखा कि मेरी कॉस्ट प्राइस ये और मेरी सेल प्राइस ये, और अगर आपको वो ये बताना शुरू कर दे तो आप कभी चीज ही ना खरीदें वहां से, उस स्टोर से। आप कहें ये तो बंदा ही बड़ा जालिम है, बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है जी, हैं? तो जनाब 10 रुपए की चीज थी, ये 20 रुपए की चीज बेचे जा रहा है। ठीक, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, जो सेलर होता है उसका जॉब क्या होता है कि ही वुड लाइक दैट व्हाटसोएवर द सेल प्राइस व्हिच दे हैव रिफ्लेक्टेड ऑन अ प्रोडक्ट, दे वुड लाइक टू ensure to the customer that this is the minimum price at which we are selling the product in the market। चाहे वो 50 रुपए की चीज लाके 100 रुपए की मार्केट में बेचे, लेकिन आपको इस चीज का यकीन दिलाएगा कि जनाब सबसे सस्ती चीज यहीं से मिलती है। ऐसा ही है कि नहीं? जी सर, ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना। तो अब ये है कि जो हमारे स्टोर रूम के अंदर या जो हमारी शॉप है उसके अंदर जो आइटम्स हमारे पास रिटेल प्राइस पे पड़ी हैं, उन आइटम्स की बेसिस पे हमने उनका हमने कैसे एनालिसिस करना है, एंड हाउ वी हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। ओके, अब यहाँ पे उसने आपको कहा हुआ बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 60,000 की है, कॉस्ट और रिटेल प्राइस दोनों का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कॉस्ट में 60,000 की है जबकि इसकी रिटेल प्राइस 80 है, परचेजेस 260 के हैं जबकि इनकी रिटेल प्राइस 320 के हैं, और वो कहता है कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे 320 का है जबकि रिटेल प्राइस पे 4 लाख है। अब उसने कहा कि अब हम अपनी कॉस्ट का और रिटेल का आपस में कंपैरिजन करते हैं। कॉस्ट हमारा 3,20,000 है, इसको डिवाइड करते हैं 4 लाख के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी सेल प्राइस का 80% है। हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी सेल प्राइस का 80% है। ओके, अब वो कहता है कि लेट्स सपोज मेरे पास जो स्टोर रूम, मेरे पास जो मेरी दुकान के अंदर आइटम पड़े हैं उनके ऊपर सब पे रिटेल प्राइस लिखी हुई है। तो मैं अगर उन तमाम आइटम के रिटेल प्राइस को सम करूं तो पता लगता है दैट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज ऑफ 70,000 बट एट सेल प्राइस। तो अगर मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट सेल प्राइस 70,000 है तो इसका मतलब आई नो दैट 80% ऑफ इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट, सो द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 56,000। तो बुनियादी तौर पे ये दिस इज अनदर मेथड बाय व्हिच वी कैन डिटरमिन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ओके, इसी तरह से नीचे फिर उसने आपको इन्वेंट्री लॉसेस डिटरमिन करने सिखाए हुए हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन यही है कि 3,20,000 था, 4 लाख था और 80% आया। उसने कहा कि लेट्स सपोज अगर हमने सेल 3,25,000 की है तो इसका मतलब इन्वेंट्री एट सेल प्राइस हमारी 75 की होनी चाहिए क्योंकि हमने 3,25,000 का सामान मार्केट में बेच दिया। तो 4 लाख माइनस 3,25,000 तो 75,000 विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट सेल प्राइस। ओके, तो अगर 75,000 है हमारा जो इन्वेंट्री है, लेकिन जो इन्वेंट्री हमें नजर आ रही है वो 70,000 की है, तो इसका मतलब डिफरेंस हमारा कितना बनेगा? 5,000। दिस इज द इन्वेंट्री शॉर्टेज, इन्वेंट्री लॉस एट सेल प्राइस। इसी तरह से अगर 75,000 की इन्वेंट्री है तो 80% हमारा कॉस्ट की इन्वेंट्री होनी चाहिए 60,000 जबकि हमारी कॉस्ट पे इन्वेंट्री निकलती थी 56,000, 70,000 के हिसाब से। तो हमारा लॉस एट कॉस्ट 4,000 है जबकि लॉस एट जो हमारा सेल प्राइस है वो हमारा है 5,000। ठीक है,
So this is how we can determine the amount of losses. Fine. तो ये हमारा था जी 7 section C. ठीक है. So now you are required to go through this section at your own. ठीक है. और इसके अंदर जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए हैं, try to solve all these questions. ठीक है. This 7C2 is a very important question. Fine. 7C2 is a very important question, and particularly those students who have, you can say that, who have a good, what we can say that, good aptitude toward the mathematics, there will be no problem for them. Okay. उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. जो मेरे जैसे हैं, मैथमेटिक्स में पुअर हैं, दे माइट बी फेसिंग सम काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी. ओके. ठीक है. उनको डिफिकल्टी आ सकती है. Now try to solve the questions relevant to this. Inshallah, tomorrow we will be having a class at the same time. Okay. कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, फिर 9 बजे होगी. ठीक है. सर 10 बजे करते हैं पॉसिबल हो तो. और यार भाई 10 बजे इसलिए नहीं हो सकती, 10 से 11 जो है ना, मैंने इवनिंग वालों की क्लास भी लेनी है. ठीक है ना. ये आप मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हो. पहले मैंने पिछला जो मेड से पहले आपको 10 बजे बुलाता था, और वो जो बेचारे इवनिंग वाले थे वो 9 बजे भी हाजिर होते थे. ठीक है. तो बड़े ये आप जो है ना वो बन गए. डिपार्टमेंट में जाएंगे तो 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी आपकी. ठीक है सर. हाँ. अभी खैर जाए, अभी मैं आपके अटेंडेंस लूंगा, फिर उसके बाद मामला आगे. जी सर. ओके सर.